محترم ناظرین، السلام علیکم رحمتہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پرواز ٹی وی۔ پرواز ٹی وی خبرنامے میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ تو آئیے خبروں کا آغاز کرتے ہیں آج کی حدیث مبارکہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان کبیرہ گناہوں سے اجتناب کر رہا ہو تو 5 نمازیں، ایک جمعے دوسرے جمعے تک اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک درمیان کے عرصے میں ہونے والے گناہوں کو مٹانے کا سبب ہیں۔ خبروں کے آغاز سے خبر ڈالیں گے ایک نظر ہیڈ لائنز پر۔ نوجوان مہاتما گاندھی جی کے اصولوں کو مشعل راہ بنائیں۔ گاندھی جینتی کے موقع پر بابا قوم مہاتما گاندھی جی کے مجسمے کو پیش کی زبردست خراج عقیدت ریاستی وزیر ویمولا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کا دورہ نظام آباد، جلسے عام سے کریں گے خطاب۔ جلسے کی تمام تر تیاریاں مکمل، ضلع کلکٹر و پولیس کمشنر نے لیا جائزہ۔ گاندھی جی کے اہنسا کے راستوں نے دیش کو ایک نئی راہ بتائی۔ گاندھی جی کے مجسمے کو پیش کی خراج عقیدت ضلع کلکٹر و میئر۔ شری مارٹ سپر مارکیٹ میں 7 سالہ ستیہ کو چاکلیٹ کے لیے فریج کھولنے پر برقی شاک لگنے سے ملی موت۔ افراد خاندان کا سپر مارٹ کے سامنے نعش کو لے کر احتجاج۔ بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی طرف۔ گاندھی جینتی کے موقع پر بابا قوم مہاتما گاندھی کو ریاستی وزیر ویمولا پرشانت ریڈی نے پیش کی زبردست خراج عقیدت۔ نوجوان مہاتما گاندھی جی کے اصولوں کو مشعل راہ بنائیں۔ بالکنڈہ حلقے کے ویلپور منڈل مستقل میں ریاستی وزیر امارت و شعرا ویمولا پرشانت ریڈی نے بابا قوم مہاتما گاندھی کی جینتی کے موقع پر گاندھی جی کے مجسمے پر پھول مالائیں چڑھا کر خراج عقیدت پیش کیا۔ ریاستی وزیر ویمولا پرشانت ریڈی نے کہا کہ ملک کی آزادی میں انتھک جدوجہد کوشش کی، جس سے بہت لوگ متاثر ہوئے۔ KCR نے ریاست تلنگانہ کو اسی طرح حاصل کیا، جس طرح گاندھی جی نے ثابت کیا کہ عدم تشدد کے ذریعے کسی بھی چیز پر فتح حاصل کی جا سکتی ہے۔ KCR کی حکمرانی مہاتما گاندھی جی کے خواب کے مطابق اور مہاتما گاندھی جی کے جذبے امن کے مطابق چل رہی ہے۔ مہاتما گاندھی جی کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، ان کی خدمات کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ریاستی وزیر پرشانت ریڈی کے ہمراہ DPCB کے وائس چیئرمین رمیش ریڈی، RDO ونود کمار، مقامی عوامی نمائندے اور دیگر قائدین بھی موجود تھے۔ 3 اکتوبر بروز منگل نظام آباد ضلع میں وزیر اعظم نریندر مودی کی آمد۔ ضلع میں ترقیاتی کاموں کا افتتاح۔ GG کالج کے احاطے میں جلسے عام سے خطاب ہوگا۔ جلسے کو پرامن طور پر کامیاب کرنے کے مقصد سے کلکٹریٹ احاطے سے GG کالج تک سخت صیانتی انتظامات۔ کل نظام آباد ضلع مستقل میں وزیر اعظم نریندر مودی کی آمد کو لے کر گورنمنٹ گیراج کالج گراؤنڈ میں وسیع تر انتظامات کو عمل میں لایا گیا۔ اس پروگرام میں وزیر اعظم نریندر مودی ترقیاتی پروگراموں کا آغاز عمل میں لائیں گے۔ اس کے بعد ایک بڑے جلسے عام سے خطاب کریں گے۔ اس موقع پر پولیس ڈپارٹمنٹ کی قیادت میں بڑے پیمانے پر وسیع تر صیانتی انتظامات کو عمل میں لایا گیا۔ اس پروگرام کے انتظامات کو عہدیداروں کی جانب سے مکمل جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کا نظام آباد میں 2 گھنٹے سے زائد مقام پر گیراج کالج، دیگر افتتاحی تقریبوں، کلکٹریٹ علاقوں کو مکمل طور پر NCG کی قیادت میں بڑے بندوبست کے ذریعے سخت صیانتی انتظامات کو SPG کمپنی نے اپنی نگرانی میں لے لیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی نظام آباد 3 بجے آمد کے بعد افتتاحی تقریب جلسے عام سے خطاب کے بعد وہ 5 بجے واپس روانہ ہوں گے۔ گاندھی جی کے اہنسا کے راستوں نے دیش کو ایک نئی راہ دکھائی۔ گاندھی جینتی کے موقع پر ضلع کلکٹر راجیو گاندھی ہنمنتو میں ڈی نیتو کرن کا بیان۔ گاندھی جی نے دیش کے
आते हुए देश को एक नई राह बताई। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु में दी नीतू किरण का बयान। गांधी जयंती तकरीब के मौके पर गांधी चौक पर जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने गांधी जी के मुजस्सिमे को फूल मालाएं डालते हुए खराज अकीदत पेश किया। इसी तरह साबिका वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री के यौम पैदाइश को लेकर इनके मुजस्सिमे को फूल मालाएं डालते हुए इन्हें भी खराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर दोनों कौमी कायदीन की देश के लिए की गई खिदमत की यादें ताज़ा की गई। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने बात करते हुए बताया कि दौरे आज़ादी की लड़ाई में गांधी जी ने अहिंसा का रास्ता इख्तियार किया। हर कौम, जात, फिरकों को एकता के साथ गांधी जी ने अहिंसा का रास्ता इख्तियार करते हुए अंग्रेजों के साथ लड़ाई की। गांधी जी की सारी जिंदगी सवाने हयात के रास्तों को अपनाते हुए नौजवानों को इस रास्ते पर चलने की जरूरत है। इसलिए बड़े मुमताज अहिंसा के रास्ते पर अवाम को लाने के लिए हुकूमतें तारीख़ कायदीन की जयंती सरकारी तौर पर मनाती है। इस मौके पर मेयर डी नीतू किरण ने बताया कि गांधी जी ने अहिंसा सत्याग्रह को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हुए आजादी की लड़ाई को आगे बढ़ाया। इस देश से अंग्रेजों को भगाते हुए आजादी हासिल की, जो आने वाली हर नस्लों के लिए मुफीद साबित हुई। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर पी यादी रेड्डी, चित्रा मिश्रा, म्यूनिसिपल कमिश्नर एम मकरन, दीगर शोबों के अहदेदारान भी मौजूद थे। మహాత్మా గాంధీ గారి జయంతి సందర్భంగా ఈరోజు అధికారికంగా మనం నిజామాబాద్ పట్టణంలో జరుపుకోవడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి నగర మేయర్ గారు, అదేవిధంగా అడిషనల్ కలెక్టర్, లోకల్ బాడీస్, నేషనల్ కలెక్టర్, రెవెన్యూ, మున్సిపల్ కమిషనర్స్, అధికారులందరూ కూడా అటెండ్ అవ్వడం జరిగింది. సో మనకి మహాత్మా గాంధీ గారు ఆ రోజు స్వాతంత్ర సమర ఉద్యమంలో అహింస అనే మార్గాన్ని ఎంచుకొని సక్సెస్ఫుల్గా ఆ రోజు మనకి భారతదేశానికి స్వాతంత్రం అనేది సాధించుకోవడం జరిగింది. ఆయన అన్ని వర్గాలు, కులాలు, మతాల వారిని ఒకే తాటిపై తీసుకొని వచ్చి ఆ రోజు బ్రిటిష్ పరిపాలనకు, నిరంకుశత్వానికి కూడా మనకి వ్యతిరేకంగా మహోద్యమాన్ని నడపడం జరిగిందాల్సిందే. సో అది ఏ కాలమైనా, ఏ తరం వారికైనా కూడా ఆ మార్గాలు అనేవి మనకి. ఈరోజు గాంధీ జయంతి సందర్భంగా ప్రజలందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. మరి ఏదైతే భారతరత్న అవార్డుని తీసుకొని మనకి అహింస, శాంతితోని ఏదైతే మన స్వతంత్రం తీసుకొచ్చారో మన భారత జాతిపిత మన మహాత్మా గాంధీ గారి యొక్క ఈరోజు జయంతి కలెక్టర్ గారు, అలాగే అడిషనల్ కలెక్టర్ గారు, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నాయకులందరూ కూడా వచ్చి ఇక్కడ ఉన్న విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులు అర్పించడం జరిగింది. మరి ఆయన పుట్టినప్పటి నుంచి కూడా ఎంతో ఉన్నత చదువులు చదువుకున్నప్పటికీ మరి అప్పుడున్నటువంటి పరిస్థితులను బట్టి మన భారతదేశాన్ని ఏ విధంగా ఆంగ్లేయుల నుంచి మనము తెచ్చుకోవాలి, ఏ విధంగా దాన్ని ఇంకా ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి అని ఒకటే ఒక పట్టుదల, ఒకటే ఆలోచనతోని ఆయన ముందుకెళ్ళడం జరిగింది. ఆయన జీవితాంతం కూడా ఆయన జీవితంలో ఎన్నో పార్టీలను, ఎంతోమందిని చూశారు ఆయన. కానీ ఏ ఒక్కదానికి కూడా మొగ్గు చూపకుండా కేవలం అహింస, శాంతి మాత్రమే ఆయన రెండు అస్త్రాలుగా తీసుకొని అందరితో మమేకమై, ఈ పార్టీ ఆ పార్టీ, ఈ కులం ఆ కులం అని కాకుండా అందరితో మమేకమై మరి కేవలం మన భారతదేశాన్ని మనం ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి. వీటన్నిటి నుంచి కూడా అది ఆంగ్లేయులు కానివ్వండి, ఇంకేదైనా సరే అప్పుడున్నటువంటి సమస్యలను నుంచి हर शहरी को कानून से मुतालिक शऊर होने पर ही वो कानून की पाबंदी और कानून का सहारा लेकर अपने ऊपर होने वाले जुल्म से बच सकता है। शुल्का के खिताबात। बोधन में नौजवानों में शऊर बेदारी मुहिम के मकसद से जमायतुल उलमा की जानिब से शऊर बेदारी प्रोग्राम। शहर बोधन के रौनक पैलेस फंक्शन हॉल रईसपेट में जमायतुल उलमा हिंद के तहत नौजवानान में मुल्क के कानूनी शऊर बेदारी पर एक खुसूसी प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। इस मौके पर एडवोकेट एतमादुद्दीन जुबैर ने पॉस्को एक्ट पर नौजवान को मुतल्ला किया, जबकि डॉक्टर पी सामैया एडिशनल पीपी बोधन ने भी कानून शऊर बेदारी पर तफसीली रोशनी डाली, जबकि एडवोकेट वाजिद हुसैन ने मुल्क के ग्रेजुएट नौजवान को LLB की तालीम के हुसूल करने का मशवरा दिया और कहा कि मुल्क में क़वानीन का इंकशाफ लाज़मी है, जिससे अवाम को बेदारी हुई। इस मौके पर हाफिज लईक खान, सदर जिला जमीयतुल उलमा व दीगर ने मुखातिब किया। सदर जमीयतुल उलमा हिंद बोधन मुफ्ती जाबिर इशाती ने तमाम मेहमानान का इस्तकबाल व शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर हाफिज शब्बीर इशाती, मुफ्ती इमाद बेग, हाफिज इब्राहिम, वसीम खान व दीगर भी मौजूद थे। बोले तो हो सके भी केस होने के बाद आपको अरेस्ट करे तो आपके हुकूकात क्या हैं,
और पुलिस से कैसा अप्रोच होना है, पुलिस से आपके बारे में क्या पूछना है, उन्होंने कौन से सेक्शन के अंदर आप अरेस्ट करे तो आपको कोर्ट को भेज सकते हैं या नहीं, पहले नोटिस देना, उसके बारे में थोड़ा सा तफसील बोलूँगा मैं, आप सुन सकते हैं। सेक्शन अरेस्ट दो तरीके के होते हैं, एक अरेस्ट विद द परमिशन ऑफ कोर्ट, एक अरेस्ट विदाउट वारंट। तो वो सेक्शन 57 ऑफ सीआरपीसी बोल के रहता है, जो आदमी को पुलिस वाले अरेस्ट करे तो उसको विद इन 24 आवर्स के अंदर कोर्ट को प्रोड्यूस करना, और अरेस्ट करने से पहले सेक्शन 50 का नोटिस देकर उसके दोस्त अहबाब, उसके फैमिली मेंबर्स उसको देना है, देके उसके अंदर डिटेल्स ये बताना है। और दूसरा आर्टिकल 22 सब क्लास 1, आर्टिकल 22 सब क्लास 1 क्या बोलता बोले तो कौन से आदमी को अरेस्ट करे पुलिस वाले, वो अपनी चॉइस का, अपनी मर्जी का वकील चुनकर उसके केस को डिफेंड करने के लिए क्या बोलता बोले तो अगर अपने घर से कोई लेडीज है जिनके ऊपर केस हुआ, उसमें वो लोग डायरेक्टली आके आपको अरेस्ट नहीं कर सकते, उसमें आपके लिए लेडीज कांस्टेबल होना जरूरी है। और उनको अरेस्ट करने की टाइमिंग सूरज निकलने से के बाद और सूरज डूबने के बाद उनको अरेस्ट नहीं कर सकते। सरकारी मुलाजिमीन की तरह अवामी कायदीन को 50% अवाम में अदम एतमाद होने पर हुकूमत की जानिब से रिकॉलिंग तरीका अपनाना चाहिए। जेडपी चेयरमैन डी विठल राव का अपने जन्मदिन के मौके पर बयान। शहर में महात्मा गांधी लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के मौके पर जेडपी चेयरमैन डी विठल राव ने इनके मुजस्सिमे को फूल मालाएं डालते हुए खराज अकीदत पेश किया। इसके बाद जेडपी चेयरमैन डी विठल राव के यौम पैदाइश पर जेडपी मुलाजिमीन अहदेदारों ने मिलकर केक काटते हुए जश्न मनाया। इस मौके पर जेडपी चेयरमैन को बीआरएस कायदीन ने गुलपोशी व शालपोशी की। इस मौके पर चेयरमैन डी विठल राव ने बात करते हुए बताया कि मैं दीगर लोगों की तरह नहीं, सरकारी मुलाजिमीन से भी दोस्ताना तौर पर मिलजुल कर रहते हुए इनके मसाइल को अपने मसाइल की तरह मसाइल की एकसुई करने पर यकीन रखता हूँ। सरकारी मुलाजिमीन की किसी गलती पर इस अहदेदार को सस्पेंड किया जाता है, उसी तरह अवामी कायदीन को भी 50% अवाम से नाराजगी जाहिर होने पर इन्हें भी मरकजी हुकूमत की जानिब से रिकॉलिंग किया जाना चाहिए। मैं गांव के एक किसान खानदान से आया हूँ, मुझे एक कैबिनेट अहदा हासिल हुआ, लेकिन मैं आम आदमी की तरह मिलजुल कर रहता हूँ। सीएम केसीआर के साथ अलहदा तेलंगाना जद्दोजहद के दौर से काम कर रहा हूँ, तब से अब तक सीएम केसीआर के नक्शे कदम पर चल रहा हूँ, इन्हीं के रास्तों पर चलते हुए अवाम की खिदमत करूंगा। इस प्रोग्राम में जेडपी अहदेदारान, मुलाजिमीन, जेडपी मेंबर्स की कसीर तादाद भी मौजूद थी। శోభవదిన జయంతి సందర్భంగా, నా జయంతి సందర్భంగా జిల్లా ప్రజలకు, అధికారులకు, మహిళలకు, రైతులకు, యువకులకు ప్రతి ఒక్కరికి సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు, శుభాభినందనలు, కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ, మరి మహాత్ములు ఎందరో పుడతారు, ఎందరో చనిపోతారు, కానీ వాళ్ళ జన్మ సార్థకం చేసుకునేటోళ్ళే సమాజంలో గొప్పది. దాంట్లో భాగంగానే ఆ రోజు మరి ఏదైతుందో బ్రిటిష్ పాలనను, డివైడ్ అండ్ రూల్ పాలనను ఎదిరించి ఒక సామాన్య పౌరుడు, ఒక మహాత్మా గాంధీ ఎదిరించి ఉద్యమం చేసి, కొన్ని సంవత్సరాలు ఉద్యమం చేసి బ్రిటిష్ పాలనని గడగడలాడించిన ఆ మహాత్మా గాంధీ మరి మన దేశానికి స్వాతంత్రం తెచ్చినట్టు, అట్లాగే మరి తరతరాలుగా ఒక 60-70 సంవత్సరాలు ఉద్యమం చేసి 2001 నుంచి టీఆర్ఎస్ పార్టీ పెట్టి 14 సంవత్సరాలు ఉద్యమం చేసి తెలంగాణ వచ్చుడో కేసీఆర్ వచ్చుడో నినాదంతో అందరు జేఏసీలు ఏర్పాటు చేసి తెలంగాణ సాధించిన వ్యక్తి। राशन कार्ड को केवाईसी करवाने की कोई आखिरी तारीख मुकर्रर नहीं और न ही केवाईसी ना करवाने पर कार्ड हज़फ किया जाएगा। अवाम झूठी इत्तलात पर यकीन ना करे।
तेलंगाना के महकमा सिविल सप्लाईज के अहदेदारों ने मशवरा दिया है कि सारिफीन राशन कार्ड को केवाईसी करवाने के बारे में फैलाए जाने वाले झूठे प्रोपेगेंडे पर यकीन ना करें, क्योंकि इसकी कोई आखिरी तारीख मुकर्रर नहीं की गई है। अहदेदारों ने इन इत्तलात को भी गलत करार दिया कि केवाईसी ना करवाने वालों के नाम को कार्ड से हस्फ कर दिए जाएं। इन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत की इस हिदायत की वजह से रियासत में अफरा तफरी की सूरत हाल पैदा हुई। मरकजी हुकूमत ने रियासतों को राशन से फायदा उठाने वालों के केवाईसी को मुकम्मल करने की हिदायत जारी की। तेलंगाना सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन ने जनवरी तक केवाईसी के अमल को मुकम्मल करने के इक़दाम किए, लेकिन फील्ड लेवल पर झूठा प्रोपेगेंडा जारी है। वजीर सिविल सप्लाई गंगोला कमलाकर ने भी पहले ही इसकी वजाहत कर चुके हैं और मरकजी हुकूमत को केवाईसी अमल को रोकने के लिए एक खत लिखा है। बहुत से लोग जिनके नाम राशन कार्ड पर वो दूसरे ममालिक और दूसरे इलाकों में और वो फिक्रमंद है कि मरकज की हिदायत से इन सब को परेशानी का सामना करना पड़ रहा। आरमूर के आलूर में वाक़े तेलंगाना अकामती स्कूल व जूनियर कॉलेज में माह रबीउल अव्वल की निस्बत से सीरतुल क्विज़ मुकाबलों का इनेकाद। अल्हम्दुलिल्लाह, माह रबीउल अव्वल के मौके पर तेलंगाना अक़लियती अकामती स्कूल व जूनियर कॉलेज आरमूर आलूर में सीरतुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क्विज़ मुकाबला मुनक़िद किया गया, जिसमें जमात पंचमता इंटरमीडिएट के तलबा ने हिस्सा लिया। सीरत क्विज़ मुकाबले का आगाज़ जमात दहुम के तालिबे इल्म शेख बिलाल ने कलाम पाक की तिलावत से किया। शेख सुफियान जमात दहुम ने हम्द बारी ताला पेश की और शेख साबिर और शेख अकमल ने नात रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पेश की। सीरत क्विज़ मुकाबले के लिए तलबा को जूनियर और सीनियर सतह के ग्रुप्स में तकसीम किया गया था। इस तरह जूनियर सतह में 10 ग्रुप और सीनियर सतह में 13 ग्रुप ने हिस्सा लिया। हर ग्रुप 4 तलबा पर मुश्तमिल था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हा ग्रुप ने इनाम अव्वल और हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हा ग्रुप ने इनाम दुवम हासिल किया। इस मौके पर प्रिंसिपल सैयद हैदर साहब, वाइस प्रिंसिपल नरसैया, कॉलेज कोऑर्डिनेटर साइनात, पीजीटी मोहन, टीजीटी इंग्लिश हाजिरा, इंग्लिश लेक्चरर हसनात, पीजीटी उर्दू मोहम्मद सलीम, टीजीटी मोहम्मद इरशाद अहमद, हाफिज मोहम्मद नदीम, डिप्टी वार्डन मोहम्मद शादुल्ला, मास के अलावा तमाम कॉलेज लेक्चरर, स्कूल के असातिज़ा और तलबा की कसीर तादाद मौजूद थी। प्रोग्राम के निज़ामत की कार्रवाई टीजीटी उर्दू अब्दुल मुजाहिद ने अंजाम दी। तमाम तलबा ने संजीदगी का मुजाहरा करते हुए क्विज़ मुकाबले को कामयाब बनाया। हाफिज नदीम के शुक्रिया की कलिमात के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम अमल में आया। वेल्लम्मा संगम की जानिब से जेडपी चेयरमैन डी विठल राव की जन्मदिन तकरीब मनाई गई। शहर के हुदूद माधव नगर बाईपास रोड पर तामीर वेल्लम्मा संगम में सदर किशोर राव की क़यादत में जेडपी चेयरमैन डी विठल राव की यौम पैदाइश तकरीब मनाई गई। इस मौके पर मेहमान खुसूसी जेडपी चेयरमैन डी विठल राव की यौम पैदाइश तकरीब पुरजोश तरीके से अमल में आई। इस मौके पर वेल्लम्मा जिला कमेटी मेंबरान ने इन्हें गुलपोशी व शालपोशी करते हुए तहनीत पेश की। इस मौके पर जेडपी चेयरमैन डी विठल राव ने बात करते हुए बताया, मेरे करीबी हामी सेवा दल कारकुनों ने आधी रात को केक कटवाते हुए मुबारकबाद तहनीत पेश की। अलग सुबह मुबारक नगर के एक मंदिर में खुसूसी पूजा करते हुए लंबी उम्र की दुआएं की गई। इन्होंने खुसूसी तौर पर इनके जन्मदिन मनाए जाने वालों को इजहार तशक्कुर किया। इस प्रोग्राम में के श्रीनिवास राव, सुरेश राव, असातिज़ा संगम कायदीन भी मौजूद थे। పుట్టినరోజు లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి పుట్టినరోజు, అట్లాగే మన ప్రియతమ సీఎం చంద్రశేఖరరావు గారి సతీమణి మా శోభావతిన పుట్టినరోజు, అట్లాగే నా పుట్టినరోజు, మా మిత్రులు తెలంగాణ సెంటర్ తాడిబేలోని మిసెస్ సర్పంచ్ పుట్టినరోజు, మా స్నేహితుడు నా క్లాస్మేట్ విద్యాసాగర్ పుట్టినరోజు. అన్ని సందర్భాల్లో ఈరోజు నేను పొద్దు నుంచి రాత్రి కూడా 12:30కి కేక్ కూడా నాకు కవచంగా నిలిచిన కేసీఆర్ సేవాదళం మొత్తం రాత్రి కేక్ కటింగ్ చేయడం జరిగింది. పొద్దున్న నుంచి పెద్దమ్మ టెంపుల్లో పెద్ద ఎత్తున పూజలు చేయడం జరిగింది. ఆ పూజలు ఏంటంటే నా కోసం పూజలు కాదు,
కేసీఆర్ గారు అందరు లౌకికవాదిగా ఒక సెక్యులర్ స్టేట్గా అందరినీ ఈక్వల్గా చూడాలని, అట్లాగే జిల్లా श्री एन मार्ट सुपर मार्केट में शॉपिंग के लिए जाने वाली 7 साला सत्या चॉकलेट के लिए फ्रिज खोलने पर बर्फी शॉक लगने से मौके पर मौत। दिल दहला देने वाला वाकया। अफरादे खानदान का सुपर मार्केट को सीज करने और कड़ी कार्रवाई का मुतालबा। हल्का संबली आरमूर के नंदीपेट मंडल में करंट शॉक से 4 साला बच्ची की मौत। तफसीलात के मुताबिक नंदीपेट के श्री एन मार्ट सुपर मार्केट में सुबह 7:35 के करीब अपने वालिद के साथ सुपर मार्केट गई हुई। चॉकलेट के लिए फ्रिज का दरवाजा खोलने पर शॉक लगने से इसी मौके पर ही मौत वाक़ हुई। इसके वालिद ने इसे खींचकर निकाला और निजामाबाद के सरकारी दवाखाने ले गया। वहां डॉक्टरों ने सत्या को मुर्दा करार दिया। करंट शॉक से 4 साला सत्या की मौत पर मुकामी अवाम और खानदान वालों ने श्री एन मार्ट सुपर मार्केट के रूबरू नाश को लेकर सुपर मार्केट के मालिक के खिलाफ एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया और सुपर मार्केट को बंद करने का मुतालबा करते हुए मालिक मकान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। देश भर में जर्नलिज्म के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मरकजी हुकूमत खुसूसी कानून मीडिया कमीशन को अमल में लाए। निजामाबाद TUWJ-IJU सदर वाई संजीव का मरकजी हुकूमत से मुतालबा। इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन के मुताबिक महात्मा गांधी जयंती के मौके पर तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट निजामाबाद शाख की क़यादत में सेफ जर्नलिज्म के नाम से जिला मुस्तफर में एहतजाजी प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसमें निजामाबाद प्रेस क्लब से गांधी चौक तक रैली का इनेकाद अमल में लाया गया और जर्नलिस्टों के मसाइल की 101 नारे लगाए गए। इसके बाद गांधी जी के मुजस्सिमे को फूल मालाएं डालते हुए इनके मुजस्सिमे को मेमोरेंडम पेश किया। इस मौके पर TUWJ-IJU जिला सदर वाई संजीव ने बात करते हुए बताया कि जर्नलिस्टों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मरकजी हुकूमत खुसूसी कानून अमल में लाए और इनकी हिफाजत के लिए मरकजी हुकूमत मीडिया कमीशन का इनेकाद अमल में लाने का मुतालबा किया। हैदराबाद के साथ रियासत के तमाम अजला, तमाम हल्के मंडलों में खिदमत गुजार सहाफ़ियों को डबल बेडरूम अराजियों की तकसीम अमल में लाई जाए। सरकारी मुलाजिमीन की तरह इन्हें हेल्थ कार्ड जारी करते हुए कैशलेस तिब्बी इलाज के लिए मौके फराहम किए जाए। तेलंगाना हुकूमत सहाफ़ियों को एक्रीडेशन कार्ड्स को जारी करते हुए इन पर लगाई गई रोक का खात्मा करे और सहाफ़ियों के बच्चे को प्राइवेट कॉलेज और स्कूल में 100% फीस बहाली देने पर जोर देते हुए हेल्थ कार्डों को कॉर्पोरेटर अस्पतालों में भी अमल में लाए। इस मौके पर जिला प्रेस क्लब सदर बी शंकर, गंगारेड्डी, अराकीन कसीर तादाद में सहाफ़ी भी मौजूद थे। TUWJ-IJU ఆధ్వర్యంలో ర్యాలీ నిర్వహించడం జరిగింది। ఈ ర్యాలీ నిజామాబాద్ ప్రెస్ క్లబ్ నుంచి గాంధీ చౌక్ వరకు ర్యాలీగా నిర్వహించి మహాత్మా గాంధీ విగ్రహానికి వినతిపత్రం సమర్పించడం జరిగింది। ప్రధానంగా దేశంలోని అక్రిడేషన్ జర్నలిస్టులందరికీ రైల్వే పాసులను పునరుద్ధరించాలని, అలాగే దేశవ్యాప్తంగా మీడియా కమిషన్ను ఏర్పాటు చేసి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు స్పష్టంగా స్పందించి కమిషన్ను ఏర్పాటు చేయాలని ఈ సందర్భంగా TUWJ-IJU జిల్లా తరపున మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం। ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేసిన జిల్లా జర్నలిస్టులందరికీ ధన్యవాదాలు। तेलंगाना हुकूमत आशा वर्कर्स के मसाइल की फौरी 101 अमल में लाए। आशा वर्कर्स की बेलौस खिदमात को समझते हुए इन्हें ESI PF स्कीमात में शामिल करने आशा वर्कर्स का अनोखा एहतजाज। आशा वर्कर्स ने अपना मेमोरेंडम गांधी जी के मुजस्सिमे के हाथ में थमाते हुए मसाइल की 101 का मुतालबा किया। दरपल्ली मंडल में गुज़िश्ता 8 रोज से रियासती आशा वर्कर्स यूनियन के तहत गैर मुआयना हड़ताल जारी है, जिसमें दरपल्ली मंडल के आशा वर्कर्स अनोखे अंदाज में एहतजाज अमल में लाए।
गांधी जयंती के मौके पर महात्मा गांधी जी के मुजस्सिमे को फूल मालाएं पहनाते हुए खराज अकीदत पेश करते हुए मसाइल की एक सुई के लिए मेमोरेंडम को गांधी जी के मुजस्सिमे के हाथ में थमाया। इस मौके पर आशा वर्कर्स ने बात करते हुए बताया कि हुकूमत आशा वर्कर्स को माहाना 18,000 रुपये तनख्वाह के साथ ESI-PF को भी अमल में लाए। अवाम की सेहत को लेकर आशा वर्कर्स मुसलसल खिदमत कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत आशा वर्कर्स के मसाइल की एक सुई के लिए कोई ध्यान नहीं दे रही। इन्होंने मुतालबा किया कि रियासती हुकूमत आशा वर्कर्स की बेलौस खिदमत को समझते हुए हमारे मसाइल की एक सुई में दिलचस्पी ले। इस प्रोग्राम में आशा वर्कर्स कारकुन पी स्वप्ना, सुजाता, सावित्री, दिगर गांव से आए आशा वर्कर्स भी मौजूद। రోజుల సందర్భంగా 8వ రోజు సందర్భంగా మరియు ఈరోజు గాంధీ జయంతి సందర్భంగా గాంధీ గారికి వినతి పత్రము ఇవ్వడం జరిగింది. కావున మేము ఆశా కార్యకర్తలం పని చేయకపోవడం వలన గర్భిణీలు మరియు బాలింతలు ఎంతగానో ఇబ్బంది పడుతున్నారు. కాబట్టి కేసీఆర్ గారు అండ్ వాళ్ళ సంస్థ తరపు నుంచి మాకు ఏదైనా జీతం తరపున కానీ ఇన్సూరెన్స్ తరపున కానీ మాకు ఏదైనా ఒకటి స్వచ్ఛందంగా నిర్వహించగలరని కోరుకుంటున్నాను. इख्तिताम से खबर डालेंगे एक नजर हेडलाइंस पर। नौजवान महात्मा गांधी जी के उसूलों को मशाले राह बनाए। गांधी जयंती के मौके पर बाबा कौम महात्मा गांधी जी के मुजस्मे को पेश की जबरदस्त खिराज अकीदत। रियासती वजीर बैमुला। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का दौरा निजामाबाद जलसे-आम से करेंगे खिताब। जलसे की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल। जिला कलेक्टर व पुलिस कमिश्नर ने लिया जायजा। गांधी जी के अहिंसा के रास्तों ने देश को एक नई राह बताई। गांधी जी के मुजस्मे को पेश की खिराज अकीदत। जिला कलेक्टर गोमेर। श्रीएन मार्ट सुपर मार्केट में 7 साला सत्या को चॉकलेट के लिए फ्रिज खोलने पर बर्फी शॉक लगने से मिली मौत। अफरादे खानदान का सुपर मार्ट के सामने नाश को लेकर एहतजाज। तो ये थे खबरों की तफसील। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी ऐसी ही मजीद खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहे परवास टीवी। अब मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।